یہ ہے ابو دھابی، UAE کا کیپٹل اور دنیا کا سب سے پاورفل اور امیر شہر۔ نارملی جب بھی UAE کا نام آتا ہے تو لوگوں کے مائنڈ میں دبئی کا خیال آتا ہے، وہی اونچی اونچی بلڈنگز، لیوش ہوٹلز اور لگژریس ریزورٹس۔ ابو دھابی کو موسٹلی لوگ اتحاد ایئر لائنز کی وجہ سے جانتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر اس وقت دو لوگوں کی تصویریں ہیں۔ آئی ایم پریٹی شیور کہ زیادہ تر لوگ رائٹ سائڈ والے آدمی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ محمد بن راشد المکتوم ہیں، دبئی کے رولر۔ لیکن آپ کو شاید یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ یہ لیفٹ سائڈ والا آدمی شیخ راشد سے کئی زیادہ پاورفل اور انفلوئنشل ہے۔ اتنا پاورفل کہ 2019 میں نیو یارک ٹائمز میں پبلش ہونے والی ایک رپورٹ میں انہیں پورے عرب ورلڈ کا سب سے پاورفل پولیٹیکل لیڈر ڈکلیئر کیا گیا، ایون کہ سعودی عرب کے محمد بن سلمان سے بھی کئی زیادہ پاورفل۔ اس پورے پرشین گلف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، UAE آج جدھر بھی کھڑا ہے، دبئی کی یہ شان و شوکت اور رونق، اس سب میں ایک انسان کا ہاتھ ہے۔ یہ ہیں شیخ محمد بن زید ال نہیان، ابو دھابی کے رولر، UAE کے پریزیڈنٹ اور گلف کے سب سے پاورفل اور امیر پولیٹیکل لیڈر۔ شیخ محمد بن زید اصل میں ہیں کون؟ یہ اتنے پاورفل کیسے ہوئے؟ اور وہ کیا چیز ہے جس نے ابو دھابی کو اتنا پاورفل بنا دیا ہے کہ چاہے ویسٹرن سپر پاورز ہوں، عرب ورلڈ ہو، ایشین کنٹریز ہوں یا ایون چائنا، ہر کوئی ابو دھابی سے بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ آئیں جانتے ہیں اس سوال کا جواب۔ سچ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں ابو دھابی کی ہسٹری کی بات کریں تو 18ویں صدی سے پہلے یہاں پر کسی بھی ہیومن سیویلائزیشن کے کوئی سائنس نہیں ملتے۔ ہاں پر ابو دھابی کے آس پاس کا یہ سارا ریجن بہت امپورٹنٹ تھا اور یہاں پر ہزاروں سال سے چھوٹے چھوٹے قبیلے آباد تھے۔ اس وقت اس سارے ریجن میں سب سے امپورٹنٹ اور بڑا ٹرائب تھا بنی یاس۔ بنی یاس کے اندر 20 چھوٹے چھوٹے اور ٹرائبز تھے جنہیں ڈفرنٹ فیملیز رول کرتی تھی۔ انہی میں سے ایک تھا الفلاسی ٹرائب۔ یہ وہی ٹرائب ہے جس سے النہیان اور المکتوم فیملی بلانگ کرتی ہیں۔ خیر 1761 میں الفلاسی ٹرائب کے کچھ لوگ تازہ پانی کی تلاش میں ادھر آئے اور پھر ادھر پرشین گلف کی کوسٹ لائن پر سیٹل ہو گئے۔ اسی ایریا کو آج ابو دھابی کہتے ہیں۔ اس وقت ان کی ساری اکانومی پرل ڈائیونگ مطلب سمندر سے موتی ڈھونڈ کر لانے اور فشنگ پہ چلتی تھی۔ یہ لوگ سمندر میں غوطے لگاتے اور موتی ڈھونڈ کر لاتے اور پھر یہاں سے یہ موتی ایران اور انڈیا کی مارکیٹس میں بھیجے جاتے۔ ممبئی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی پرل مارکیٹ تھی جہاں پر یہ سارے موتی پالش کر کے یورپ اور ٹرکی میں بھیجے جاتے تھے۔ بس اسی سے ان لوگوں کا گزر بسر ہو رہا تھا اور حالات اوور آل اچھے خاصے خراب تھے۔ ریگستان میں کچھ اگتا تو تھا نہیں اور سوائے مچھلی اور کھجور کے اور کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں تھا۔ اسی لیے کتنے 100 سالوں تک ابو دھابی کی پاپولیشن بہت ہی کم رہی۔ ایون 20th سینچری کے سٹارٹ میں پورے ابو دھابی کی آبادی صرف 6000 تھی۔ اسی زمانے میں ابو دھابی کو ایک اور دھچکا لگا جب جاپان نے ہائی کوالٹی کے پالشڈ آرٹیفیشل پرلز بنانے شروع کر دیے اور نتیجہ تن ابو دھابی کی پرل انڈسٹری کی ڈیمانڈ بالکل ختم ہو گئی اور پھر رہی صحیح کسر 1929 کے گریٹ ڈپریشن نے پوری کر دی۔ حالات بہت خراب ہو چکے تھے، ہر طرف غریبی اور بھوک کے ڈیرے تھے اور یہ حالات صرف ابو دھابی کے ہی نہیں بلکہ دبئی، شارجہ، عجمان اور ایون سعودی عربیہ کے حالات بھی اس سے کچھ ڈفرنٹ نہیں تھے۔ پھر 1938 میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا جب سعودی عرب میں آئل کے بہت بڑے ریزروز ڈسکور ہو گئے اور پھر ساری ویسٹرن ورلڈ کا فوکس سعودی عرب کی طرف ہو گیا۔ اس وقت ابو دھابی کے رولر شخبت بن سلطان ال نہیان تھے۔ سعودی عرب میں آئل کی ڈسکوری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ویسٹرن کمپنیز کو فل پرمیشن دے دی کہ وہ ابو دھابی میں بھی آئل کے ریزروز کی کھوج لگائیں، مگر اگلے ہی سال ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی اور یہ ایکسپلوریشن کا کام رک گیا۔ ورلڈ وار 2 ختم ہونے کے بعد دنیا تیزی سے انڈسٹریلائزیشن کی طرف بڑھنا شروع ہوئی اور اسی لیے تیل کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اسی لیے ویسٹرن کمپنیز نے ایک بار پھر ابو دھابی میں تیل کی کھوج کا کام تیز کر دیا اور پھر 1958 میں ابو دھابی میں آئل کے ریزروز ڈسکور ہو گئے۔ لیکن اس ڈسکوری کے بعد بھی ابو دھابی کے حالات نہیں بدلے کیونکہ شیخ شخبت تیل سے ملنے والے پیسوں کو لے کر کچھ زیادہ ہی کیئرفل تھے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ آئل ریزروز بڑی لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہیں اور ابو دھابی کو بہت سالوں بعد یہ ریزروز ملے ہیں، تو اگر یہ ایکسپلوریشن اسی تیزی کے ساتھ جاری رکھی گئی تو کہیں یہ ریزروز
खत्म न हो जाए। उन्हें शायद उस वक्त इस चीज का अंदाजा नहीं था कि अबू धाबी के पास दुनिया के छठे सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व्स हैं। शेख शखबुत ने ब्रिटिश कंपनीज को मजीद तेल एक्सप्लोर करने से रोक दिया और इसके नतीजे में अल नहयान फैमिली के बाकी मेंबर्स में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। एक तरफ सऊदी अरब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल अब एक्सपोर्ट कर रहा था और इधर इतने बड़े रिजर्व्स होने के बावजूद अबू धाबी के हालात सिर्फ इतने ही बदले थे कि कुछ सड़कें और फुटपाथ पक्के बन गए थे। लेकिन फिर 1966 में शेख जैद बिन सुल्तान ने एक मिलिट्री कू के जरिए अपने भाई को रिप्लेस कर दिया और अबू धाबी के रूलर बन गए। और यही था गल्फ का टर्निंग पॉइंट। यही वो शख्स है जिसने गल्फ को आज इस मकाम तक पहुंचाया और इसीलिए इन्हें वालिद अल उम्मा मतलब फादर ऑफ नेशंस कहा जाता है। शेख जैद अपने भाई से टोटली डिफरेंट थे। वो इस तेल की डिस्कवरी को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे। उन्हें लगता था कि ये डिस्कवरी इस पूरे गल्फ रीजन की तकदीर बदल सकती है। शेख जैद एक बहुत ब्रॉड विजन के मालिक थे। उन्हें इस चीज का अच्छी तरह अंदाजा था कि अगर इस सारे रीजन को आगे बढ़ना है तो इन सारे सिटीज को यूनाइटेड होकर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता था कि अबू धाबी तेल का पैसा एंजॉय करे और उसके पड़ोसी गरीबी और भूख में रहें, क्योंकि अबू धाबी जितना तेल इस पूरे रीजन में किसी के पास नहीं था। और ये वही टाइम था जब ब्रिटिश एम्पायर भी ये फैसला कर चुकी थी कि अब वो मजीद इन सारे कंट्रीज को रूल नहीं कर सकती। और फिर दिसंबर 1971 में ब्रिटेन इस रीजन से चला गया और शेख जैद की लीडरशिप में 6 स्टेट्स के मिलाप से एक नया कंट्री वजूद में आया जिसे आज हम UAE के नाम से जानते हैं। इन 6 स्टेट्स में अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल कुवैन और फुजैरा शामिल थे। और फिर एक साल बाद ही 1972 में रास अल खैमा भी UAE का पार्ट बन गया। अबू धाबी इस नए कंट्री का कैपिटल बन गया और शेख जैद बिन सुल्तान अल नहयान UAE के पहले प्रेसिडेंट बन गए। शेख जैद ने सबसे पहले बेसिक नेसेसिटीज पर पैसा खर्चना शुरू किया। रोड नेटवर्क्स की कंस्ट्रक्शन शुरू की गई जो अबू धाबी को आसपास के विलेजेस से कनेक्ट करने वाली थी। बिजली पैदा करने वाले प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। अबू धाबी के नॉर्थ में कोस्ट लाइन के साथ समुद्री तूफान से बचने के लिए एक दीवार बनाई गई। इसके बाद शेख जैद ने अपना सारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर कर दिया। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पुलिस, आर्मी, जो भी बेसिक डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, उन सब को स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट और ट्रेनिंग दी गई। अब क्योंकि दुबई के पास ऑयल के बहुत ज्यादा रिजर्व्स नहीं थे तो शेख जैद ने दुबई के रूलर अल मक्तूम बिन राशिद को ये मशवरा दिया कि वो दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और 2 चीजों के जरिए दुबई की तकदीर बदलें। एक दुबई का सी पोर्ट और दूसरा टूरिज्म। अबू धाबी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए दुबई को अच्छी खासी फंडिंग दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता दुबई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मशहूर होना शुरू हो गया। और यही वो टाइम था जब एक और पर्सनैलिटी भी इस सारी ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से देख रही थी। ये थे मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, शेख जैद बिन सुल्तान के तीसरे बेटे जो आगे चलकर UAE के प्रेसिडेंट बने। मोहम्मद बिन जैद उस वक्त 10-11 साल के थे मगर वो बहुत ध्यान से अपने फादर और उनकी पॉलिसीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो देख रहे थे कि कैसे तेल का पैसा आने के बावजूद शेख जैद बहुत केयरफुल प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल डिस्कवरी के कुछ ही अरसे बाद उन्होंने एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया जिसका काम ही ये था कि वो ऑयल से आने वाले एक्स्ट्रा पैसे को डिफरेंट चीजों में इन्वेस्ट करे। इसके पीछे विजन ये था कि फ्यूचर में अगर तेल कम भी हो जाए तो अबू धाबी के पास इतनी इनकम स्ट्रीम्स हो कि उसे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो। आज की डेट में अबू धाबी के इन्वेस्टमेंट फंड में 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं। इनमें से 900 बिलियन डॉलर्स सिर्फ अबू धाबी के सिटीजन्स के लिए हैं। मतलब अगर हम 900 बिलियन डॉलर्स को 3 लाख से डिवाइड करें तो अबू धाबी के हर लोकल के हिस्से में 3 मिलियन डॉलर्स आते हैं। इस हिसाब से अबू धाबी के लोकल्स दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं और ये अमीरी इसलिए है कि शेख जैद की गाइडेंस में इस फंड ने ऑयल से आने वाले एक्स्ट्रा पैसे को रियल एस्टेट से लेकर इक्विटी फंड्स, होटल्स, एयरपोर्ट्स, फैक्ट्रीज और इवन बैंक्स में भी इन्वेस्ट किया। और इसीलिए जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो अबू धाबी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और इसी की एग्जांपल है कि 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया और दुबई की इकोनॉमी क्लैप्स कर गई तो अबू धाबी ने ही 10 बिलियन डॉलर्स का लोन देकर दुबई को बेल आउट किया और इसी के बदले में दुबई की इस मशहूर ऊंची बिल्डिंग का नाम बुर्ज दुबई से चेंज करके अबू धाबी के रूलर के नाम पर बुर्ज खलीफा किया गया। आज भी दुबई का डेट
डेट करीबन 90 बिलियन डॉलर्स है, जिसमें से 20 बिलियन डॉलर्स तो सिर्फ अबू धाबी से लिया हुआ लोन है जो दुबई ने अभी तक वापस नहीं किया। तो ये थी अबू धाबी की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। अभी तो दो और चीजें हैं जिनकी वजह से अबू धाबी पूरे गल्फ पर बाजी ले गया है। मोहम्मद बिन जैद की जिंदगी का एक बड़ा पोर्शन मिलिट्री में गुजरा है। सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने अमीराती एयरफोर्स ज्वाइन की और फिर 1991 में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक किया तो इराक के खिलाफ सारी मिलिट्री स्ट्रगल को उन्होंने ही लीड किया। शायद इसी आर्मी बैकग्राउंड की वजह से मोहम्मद बिन जैद को ये जुनून हुआ कि वो अमीराती आर्मी को अरब वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आर्मी बनाए। बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं कि यूएई को वेस्ट में लिटिल स्पार्टा भी कहा जाता है और इसकी वजह ये है कि यूएई के पास अरब वर्ल्ड की सबसे वेल ट्रेन्ड और वेल इक्विप्ड 60,000 फौजियों की आर्मी है। एमिरेट्स का एनुअल मिलिट्री बजट 20 बिलियन डॉलर्स है और अभी रिसेंटली यूएई ने अमेरिका से THAAD यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी खरीदा है जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स में से एक है। ये वही मिसाइल सिस्टम है जो अमेरिका ने साउथ कोरिया में लगाया था और इसकी वजह से उसके और चाइना के बीच अच्छी खासी टेंशन भी हो गई थी। यूएई सऊदी अरब के बाद अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है और सिर्फ यही नहीं बल्कि यूएई की आर्मी 2003 के बाद से बहुत एक्टिवली डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि सोमालिया, यमन, इजिप्ट और इवन लीबिया में ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रही है। इसके अलावा यूएई में सारे मेडिकली फिट अमीराती मर्दों के लिए नेशनल मिलिट्री सर्विस ट्रेनिंग लेना मस्ट है और सिर्फ आर्मी ही नहीं बल्कि यूएई की पुलिस भी दुनिया की सबसे वेल इक्विप्ड और ट्रेंड पुलिस फोर्स है। अभी 2003 में अबू धाबी को दुनिया का सबसे सेफेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है और इसी सिक्योरिटी की वजह से आज यूएई दुनिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल, कमर्शियल, टूरिस्ट और लॉजिस्टिक सेंटर बन चुका है और इसका सारा क्रेडिट अबू धाबी की लीडरशिप को जाता है जिन्होंने जबरदस्त प्लानिंग के थ्रू ऐसा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है कि आज हर बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर आपको दुबई या अबू धाबी में मिलेगा। यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल चीज ये भी है कि मोहम्मद बिन जैद अरब वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के बहुत खिलाफ हैं। उनके मुताबिक अरब कंट्रीज डेमोक्रेसी के लिए रेडी ही नहीं है और अगर डेमोक्रेसी को मौका दिया गया तो कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इलेक्शन जीतकर यूएई की सारी प्रोग्रेस तबाह कर देगा और यही वजह है कि मोहम्मद बिन जैद एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के जरिए सबको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इसी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और इकोनॉमी की वजह से आज अबू धाबी यूएई और इवन पूरे गल्फ की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी कंट्रोल कर रहा है और इन्हीं दो चीजों की वजह से मोहम्मद बिन जैद आज डिफरेंट कंट्रीज के साथ जबरदस्त डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स भी बिल्ड कर रहे हैं। इंडिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया, चाइना, रशिया, हर कंट्री की टॉप लीडरशिप मोहम्मद बिन जैद की लीडरशिप में यूएई के साथ प्लान्स साइन कर रही है क्योंकि इतने पैसे और पावर के साथ वो पर्शियन गल्फ में सारी बड़ी सुपर पावर्स के लिए एक हॉट फेवरेट लीडर हैं। तपते हुए रेगिस्तानों में, गरीबी और भूख के गहरे बादलों में जिस तरह दुबई और अबू धाबी को खड़ा किया गया है वो अपनी मिसाल आप है। पैशन, कमिटमेंट और अपने लोगों से वफादारी वो चीज है जो रेगिस्तान को भी गुलिस्तान बना देती है। क्या मोहम्मद बिन जैद और राशिद बिन मखदूम के बाद आने वाले भी इसी लगन से अपने लोगों के लिए काम करेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।